الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Over to you, Usman sir. जी थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर, ऑडिबल है जी। अस्सलाम वालेकुम distinguished guests and respected IFA members. It is with great pleasure to inaugurate this webinar organized by the Faisalabad Branch Committee of IFA on a topic of utmost relevance in our fast-paced professional landscape, managing stress in the workplace and our mental health. My fellow members and guests, in the pursuit of excellence in the field of accountancy, it is imperative that we do not only excel in our technical skills, but also prioritize our mental well-being. Our speaker for today, Ms. Khansa Anjum, needs no introduction, a highly regarded NLP master professional and a mindset coach who has dedicated her career to unlocking the potential within individuals as well as organizations. Dear fellows, today's session promises to be a transformative experience, offering practical strategies and insights to navigate the challenges of stress and foster a resilient mindset. As we join today's session, it is essential to acknowledge the unique pressures faced by the professional accountants, such as PIFA members. The dynamic nature of our work, combined with the tight deadlines and ever-evolving regulations, can undoubtedly take a toll on our mental health. However, recognizing the significance of mental well-being is the first step towards achieving a harmonious work-life balance. Our speaker, Ms. Khansa, brings a wealth of knowledge in neuro-linguistic programming, NLP, a powerful tool that can empower us to reframe our thoughts and responses to stresses. Additionally, her expertise as a mindset coach will guide us in cultivating a positive and resilient mindset that is essential for navigating the complex challenges in our profession. Together, let us all delve into the intricacies of stress management, exploring practical techniques that can be seamlessly integrated into our daily routines. My dear participants, beyond the professional realm, this seminar serves as a reminder that prioritizing our health contributes not only to our success in the workplace, but also to our overall quality of life. I invite each of you to actively engage in today's session, pose questions, and absorb the invaluable knowledge our speaker has to offer. Without further ado, let us extend a warm welcome to our esteemed speaker, Ms. Khansa Anjum, who will undoubtedly inspire and guide us on the path to managing stress and fostering mental well-being in our professional lives. Thank you very much. Over to you, Ali. Assalamu alaikum everyone. Okay, so my name is Khansa Anjum. जैसे कि सर उस्मान ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, मैं एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ और एक माइंडसेट कोच हूँ।
और पिछले 2 साल से मैं लोगों के साथ डिफरेंट 101 सेशंस लेती हूँ ताकि उनके मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के हवाले से उनके काम किया जा सके, और उनकी जो है वो गोल्स, उनके जो स्टक हैं वो अपनी लाइफ में उनके गोल्स अचीव हो सकें। और डिफरेंट वेबिनार्स और वर्कशॉप में जो हूँ वो कंडक्ट करवाती हूँ ताकि लोगों में अवेयरनेस हो सके कि हमारी जिस तरह से हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज के स्ट्रेस मैनेजमेंट इन वर्क प्लेस, जिसका अक्सर हमें नहीं अंदाजा होता। हम लोग काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन हमें पता नहीं होता कि स्ट्रेस किस तरह से हमें मुतासर कर रहा होता है, हमारी फिजिकल हेल्थ को भी मुतासर कर रहा होता है, और हमें किस तरह से डेली रूटीन में मैनेज करना है। क्योंकि जब हम जाहिर है आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में तो हम रोक तो नहीं सकते स्ट्रेसेस को, लेकिन हम उनके साथ कैसे चल सकते हैं और किस तरह से हम साथ में मेंटल हेल्थ अपनी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो कौन से टूल्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं। तो आज हम उनके हवाले से जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, वो सीखेंगे कि वो क्या टेक्निक्स हैं जो कि हमें इस हवाले से हेल्प आउट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपना ये स्टार्ट करूं, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी ऑफ अ गर्ल, एक लड़की की कहानी, जो कि आप समझ लें कि शी वाज लाइक 20 years old, 20 साल की थी वो। 20 साल की थी, अपना जो ग्रेजुएशन किया बीएससी उस टाइम पे, अब तो बीएससी खत्म हो गई है, अब तो ये है कि बीएस होता है 16 year प्रोग्राम, लेकिन उस टाइम पे बीएससी होती थी 14 years की। तो उसको करने के बाद उसने क्या किया कि उसको जो है वो जॉब मिल गई। एनटीएस की एग्जाम्स आए तो उसने जो है वो उसके लिए अप्लाई किया और वो उसको टीचिंग की अच्छी जॉब मिल गई। सो उस टाइम पे लगता नहीं था मिलेगी, क्योंकि उसके एम्स में शामिल नहीं था, गोल्स में शामिल नहीं था। उसके गोल्स में शामिल था कि मैं जो हूँ वो मास्टर्स करूंगी, एमफिल करूंगी, उसके बाद कहीं अप्लाई करूंगी। लेकिन सबने कहा चलो जाओ भैया अप्लाई कर लो, खैर है तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। वो बाय चांस उसको जॉब मिल गई, मेरिट बहुत हाई था, उसने क्लियर कर लिया। तो क्या हुआ कि जब वो हुआ जॉब वो करना स्टार्ट की, तो उसके बाद इवनिंग में वो क्लासेस लिया करती थी अपनी एमएससी की, और इस तरह से वो मैनेज कर रही थी, और वो बड़ा अच्छा मैनेज कर रही थी। और उसको ये है कि क्योंकि जो हमारे स्कूल्स के इन्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट स्कूल का, उधर ज्यादा लोग एज के होते हैं, तो उसका किसी से इतनी ज्यादा बनती नहीं थी। तो वो ये था कि वो अपने आप को कामों में एंगेज कर लेती थी मुख्तलिफ किस्म के। तो अपनी बहुत सारी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा ली। उस टाइम पे ये है कि उसके स्कूल में कोई आईटी टीचर नहीं था, तो उसने कहा कि ठीक है ये भी सारा काम मैं देख लेती हूँ। ये है कि वो बहुत खुश थी और किसी को ना नहीं बोलती थी, जिसने जो कह दिया हर एक की हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, ईच एंड एवरीथिंग वो हेल्प कर दिया करती थी। वो अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर रही थी। वो शाम में सुबह अपनी क्लासेस भी, स्कूल वाले भी राजी थे, यूनिवर्सिटी में भी ग्रेड अच्छे आ रहे थे, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ली हुई थी, हर कोई तारीफ करता था। और उसको खुद जो अपने आप को वैलिडेशन नहीं लेती थी वो बाहर से सुनती थी, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। तब तक कुछ नहीं हो रहा था। क्या हुआ, वो एमफिल में गई, एमफिल में भी एडमिशन ले लिया, एमफिल भी अच्छा चल रहा था, लेकिन तब उसकी लाइफ में स्ट्रेसेस आना शुरू हुए। पहला स्ट्रेस तब आया क्योंकि वो जॉब शुरू में कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। पहला स्ट्रेस तब आया जबकि उसने परमानेंट होना था, तो उन लोगों ने बोला कि क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके नाम में फादर नेम पूरी तरह से करेक्ट नहीं था, तो उसकी वजह से उसका डिले हो गया। वो कोर्ट में उसको केस करना पड़ गया। अपनी सारे उसने डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स से ऑन वर्ड सारे ठीक करवाए। उसमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ जाते थे, किसी ने कहना पे रुक जाएगी, किसी ने कहना कुछ हो जाएगा। वो पहला स्ट्रेसर था। उसके बाद दूसरा स्ट्रेसर ये हुआ कि उसका अलाउंस का कुछ मसला चल रहा था। उसने बहुत मेहनत की हुई थी, 1.5 2 साल की कोई डॉक्यूमेंटेशन थी, वो किसी ने जो है ना वो इंतकाम में आके घुमा दी। दूसरा स्ट्रेसर ये था। तीसरा उसकी जॉब थी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तादाद बहुत ज्यादा होती है, वो ऑलरेडी था, वो पहले महसूस नहीं होता था, वो भी स्ट्रेसर लगा। उसके बाद क्या हुआ कि एमफिल में जब वो रिसर्च कर रही थी, तो क्या हो रहा था कि एमफिल में एकदम से रिसर्च में आपको काफी काफी दिन देना पड़ता है। आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो तो आपको जो है कि एक रीडिंग लेनी पड़ती है, एकदम से फोन आ जाता था क्लास वाले उसका, आ जाओ अब ये काम कर रहा है। वो एक स्ट्रेस है। दूसरा तीसरा फिर उसको पहली दफा अंदाजा हुआ कि जो उसने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई हैं, जो सबको वो हाँ कर देती थी, क्योंकि इतने स्ट्रेसेस में वो काम खराब करने लगी, उसको चीजें भूल जाती थी, उसका फोकस नहीं रहता था, उस तरह से तवज्जो नहीं रहती थी। देन फर्स्ट टाइम शी रियलाइज कि उसने अपने ऊपर कितना बर्डन डाला हुआ है। और जब चीजें खराब होने लगी तो जो लोग उसको लगता था कि उसको सपोर्ट करेंगे, उन्होंने सपोर्ट करने की बजाय क्या किया कि वो, क्योंकि उसकी वो जिम्मेदारियां बन गई हुई थी जो एडिशनल बर्डन डाला था, तो उन्होंने सपोर्ट करने की बजाय उन्होंने भी उल्टा जो है वो उसके खिलाफ हो गए। तो देन शी कोलैप्स।
वो कोलैप्स कर गई, उसको पैनिक अटैक आए, ठीक है। सांस उखड़ जाता था, वो बंदी जो काफी काफी चल लेती थी, थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाती थी, सांस उखड़ जाता था। सांस जैसे अस्थमैटिक अटैक होता है ना, तो कोविड के डेज हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल चेक करवाया, उन्होंने कहा नहीं, एक्सरे भी ठीक है, एवरीथिंग इज योर फाइन, लेकिन क्या है, आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, ये डिप्रेशन है, ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है, ये पैनिक अटैक से आप चली जाए। उसको समझ कुछ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उससे पहले उसने एक एनएलपी का, एक पर्सनल डेवलपमेंट, एक कोच का प्रोग्राम अटेंड किया हुआ था, थोड़ा कांटेक्ट था, उसने मुझसे बात की कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे सांस नहीं लिया जाता, सांस उखड़ जाता है मेरा, मैं क्या, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि ना जाना, साइकेट्रिस्ट के पास ना जाना, मेडिसिन लोगी, सोती रहोगी, आओ मेरे पास। देन शी टुक थेरेपी फॉर हर सेल्फ, अपने लिए ली, अपने अंदर चेंजेस देखी, उसके बाद पैनिक अटैक नहीं आया, प्रॉपरली सेशंस लिए। उसके बाद पहली दफा एहसास हुआ कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसने क्या किया कि उसने वो सारी सर्टिफिकेशन सीखी अपनी कोच से इम्प्रेस होके, और वो सीख के फिर उसने प्रैक्टिस की, और वो आज आपके सामने बैठी है। सो दैट वाज माय स्टोरी, ये मेरी अपनी स्टोरी थी, मेरी अपनी लाइफ की स्टोरी है कि इस तरह से मैं जो हूँ वो इसमें आई हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि कुछ आप मेरी लाइफ स्टोरी से आप क्या सीख सकते हैं, अगर आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकें, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना इससे लर्न कर सकें और कितना आप इंटरेक्ट कर सके। चैट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे कि आप मेरी स्टोरी से क्या लर्न कर सकते हैं, बट यू कैन लर्न फ्रॉम माई स्टोरी। जी, आपकी इंटरेक्शन होगी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग सुन रहे हैं और मेरे साथ मौजूद है। Amazing and inspiring. Work-life balance is critical. That's great. Don't have to take extra burden. Nice. Great. चलें, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि आप लोगों की पार्टिसिपेशन मुझे बताएगी कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं। लर्न टू से नो, या इट्स वेरी एसेंशियल। ठीक है, ओके, चले हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली क्या है, अब ये स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, लाइफ की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, ठीक है। लाइफ की डिमांड्स को पूरा करते करते जो हम लोग प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और ये जो लाइफ की डिफरेंट तरह की डिमांड्स है ना, ये क्या होती हैं, ये स्ट्रेसेस होते हैं, ये वो सोर्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं, ये हमें स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस हम आम रूटीन में, हम में से हर बंदा स्ट्रेस फेस कर रहा होता है, और छोटी छोटी स्ट्रेस हम बर्दाश्त करते चले जाते हैं। लेकिन स्ट्रेस कब प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, स्ट्रेस तब प्रॉब्लमेटिक बनता है जब वो बहुत देर के लिए रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहे, और दूसरा एक चीज ये है कि वो जा नहीं रहा, ठीक है। तो फिर वो स्ट्रेस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है और आपको मैनेज नहीं करना आ रहा, तो तब आपको इसको मैनेज करने की जरूरत होती है। अच्छा, अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है स्ट्रेस क्या है, क्योंकि हर पर्सन की एक डिफरेंट डेफिनेशन होती है। और आप जब स्ट्रेसफुल होते हैं तो आप फिजिकली और इमोशनली कैसा फील करते हैं, कुछ मुझे बताएं, कि हर पर्सन डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है, तो मैं वो जानना चाह रही हूँ। आई लर्न हाउ टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन, नोबडी हेल्प यू विदाउट योर ओन सपोर्ट, दैट, yeah, that's great. Never overload yourself. Okay, inability to focus on anything and insomnia. Asif, thank you for sharing. ठीक है, और आप मुझे बताएं कि स्ट्रेस आपके, आपको क्या लगता है, व्हाट इज स्ट्रेस मीन्स टू यू, और कैसे ये आप लोगों को अफेक्ट करता है फिजिकली, मेंटली, टू फील हिमसेल्फ लो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई कुछ बताना चाहे, we may somehow manage personal life stress, but how can we overcome stress through external environment, for example automa, या हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, when we unable to manage our workload, count what you have, leave what you don't have। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस। ठीक है, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ओके, ये हो गया स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की सिम्टम्स क्या आप लोग फील करते हैं, डिफरेंट पर्सन के साथ डिफरेंट होती है। स्ट्रेस आ रहा है, क्या हो रहा है, हेडेक, कई लोगों को बहुत ज्यादा सर में दर्द होता है, प्रेशर बर्दाश्त होता है, स्ट्रेन लगता है, और थकावट। आप आम रूटीन में काम कर रहे होंगे लेकिन आपको लगेगा आप बहुत ही ज्यादा थके हैं। डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, लोगों को नींद नहीं आती,
परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इम्प्रूव, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। आप उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते जब आप स्ट्रेस होते हैं। आप जिस तरह से आप कहते हैं कि मैं एक वक्त था मैं ऐसा करता था, अब तो मैं मेरी वो चीजें नहीं रह गई। ठीक है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपके सामने कोई बोल रहा है, जैसे मैं आपको अपना बताऊं तो मैं वही पर्सन थी जो कि कितनी कितनी चीजें मैनेज करती थी। मेरे साथ कोई बोलता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था ये मुझे क्या बोल रहा है। मैं पढ़ाते हुए वो बच्चों के चीजों पे फोकस नहीं कर पाती थी। फिर उसके बाद एंजाइटी, अगर आपका स्ट्रेस स्ट्रेस की छोटी छोटी चीजें खत्म हो गया, लेकिन अगर ये स्ट्रेस लॉन्ग टर्म तक जाना शुरू हो गया तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट होने लग जाता है। जैसे मुझे पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए थे, उसकी सिम्टम्स जो है वो हमेशा के लिए रहने लग जाती हैं। आपको फ्यूचर के हवाले से अच्छी चीजें नजर नहीं आती। ये टेंशन ये आपकी कंटिन्यूज आपके साथ रहना शुरू हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन में भी तब्दील हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। हर पर्सन में जरूरी नहीं है हो, कुछ पर्सन की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ का डाइजेशन साइकिल डिस्टर्ब होता है, कुछ की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। सो ये वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन हाँ, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको हो सकती है व्हेन यू आर हाईली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ओके, सो वर्क प्लेस में जैसे आप लोग सारे अकाउंटेंट्स हैं और वर्क प्लेस में मौजूद हैं, क्या स्ट्रेसेस हो सकते हैं? हाई वर्कलोड, जाहिर है काम का प्रेशर है, एकदम से काम आपको मिल जाता है, आप एक असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं एक और आपको दे दी जाती है। ठीक है, एप्रिसिएशन नहीं होती, काम आप कर रहे हैं आपको उस तरह से जैसे आप चाहते हैं कि हाँ मेरी तारीफ हो, वो आपको तारीफ नहीं मिल रही। ठीक है, इर्द गिर्द आपके साथ अच्छी अल्फाज में बात नहीं की जा रही। फिर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस, एकदम से एक सेटअप में आप काम कर रहे थे, आपने बड़ा अच्छा उसको मैनेज कर रखा था सारा कुछ, एकदम से सब बदल जाता है, चीजें एकदम से, आप नए रूल्स आ गए, नए रेगुलेशन आ गए, सब कुछ बदल गया। देन क्या हुआ? आपके लिए वो चीजें मैनेज करना नहीं, आपको वो एक स्ट्रेसर लग रहा है। ठीक है, और आप जो है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जिस पोजीशन पर आज बैठे हैं 10 साल बाद भी आप वहीं मौजूद हैं। सो वो आपको एक स्ट्रेसर लगता है कि मेरे आगे वाले मेरे साथ वाले कहाँ पहुंच गए हैं, बाकी कंपनीज वाले कहाँ पहुंच गए हैं और मैं वहीं पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, फिर दूसरी एक और चीज जो कि स्ट्रेसर हो सकती है वो ये है कि आप कई लोग बहुत अच्छे होते हैं अपने काम में, परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, लेकिन घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे होते, फैमिली को टाइम नहीं पा रहे होते, फैमिली कंटिन्यूसली शिकायत कर रही होती है कि भाई हमारे लिए कहाँ टाइम है। तो ये भी एक स्ट्रेसर बन जाता है लॉन्ग रन में कि इंटरनली वो चाहते हैं कि ये होना चाहिए बट वो उनसे मैनेज हो नहीं पा रहा होता। सो ये बेसिकली कुछ स्ट्रेसेस है जो कि वर्क प्लेस में मौजूद होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक एक्टिविटी है, ठीक है, आपने अपने लास्ट मंथ को रिफ्लेक्ट करना है और एक सिचुएशन को आप देखें कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे। ठीक है, उसमें देखें कि कौन से सोर्सेस थे जिन्होंने आपको स्ट्रेस दिया था और कैसे उस स्ट्रेसर ने आपके मूड को अफेक्ट किया था, ये आपने मुझे चैट बॉक्स में बताना है। एक सिचुएशन सोचे कैसे उसने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया था। दैट, ओके, office politics also, yeah, people's behavior, you are right. So that I think it will be will of Allah Almighty. Really, there is no anxiety on me because that's great because Allah Ta'ala ने जाहिर है आपके बेटे को लिया है। How stress affect you? Office politics, shifting of residence, workload, liquidity problem. Okay, ठीक है। कैसे लास्ट मंथ में कोई ऐसी स्टडिंग फॉर एग्जाम पढ़ते हुए, ठीक है, ठीक है, और क्या न्यू वर्क प्लेस एंड एटमोसफेयर। ठीक है, और इसने आपको कैसे इम्पैक्ट किया था, आपकी बॉडी में आपने क्या सिम्टम्स फील की थी, किस तरह से आपको लगा था कि स्ट्रेस है, आपको कैसे महसूस हो रहा था। ठंड, हाँ, सर्दियों का जो सर्दियों का ना एक अलग स्ट्रेस होता है, विंटर स्ट्रेस एक डिफरेंट होता है, स्पेशली वो लोग हम लोगों के हैं लेकिन बाहर के लोग ज्यादा इसको एक्सपीरियंस करते हैं। give a lot of extra work hours, politics of other people at workplace, okay, headache, ठीक है, आपको हेडेक आई थी, सोहेल थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है सर, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स, लास्ट डेट ऑफ रिटर्न, चेंज मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपके लिए एक स्ट्रेसर था, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हेल्थ इश्यूज, हाँ हेल्थ इश्यूज बेस्ट, ये एक अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज किया है, ये चीजें हेल्थ इशू भी आपका एक स्ट्रेसर हो सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग, आप लोग बहुत अच्छा इंगेज कर रहे हैं हमारे साथ साथ। ओके, सो नेक्स्ट चीज, अब हमने देखा है स्ट्रेस क्या होता है, हमने देखा है कि किस तरह से ये हमारे जो है वो जिस्म में डिफरेंट तरह की चेंजेस ला रहा होता है। ठीक है, सो अब हमने देखना है कि स्ट्रेस हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं। एकदम से मेरे पे स्ट्रेसर आ गए, एकदम से मेरे बॉस ने मेरे पे काम डाल दिया, एकदम से मेरे एग्जाम आ गए हैं, मैं क्या करूं।
तो दो तरह की टेक्निक्स हो सकती हैं। एक तो है फास्ट एक्टिंग, ठीक है, कि अभी एकदम से मेरे पे स्ट्रेस आ गया, मुझे अभी अगला असाइनमेंट भी करना है। एक तो है ना कि लंबा टाइम लगेगा, वो तब मैं क्या कर सकती हूँ इंस्टेंटली। और एक है कि मैं अपनी लाइफ में कौन सी चेंजेस करूँ लॉन्ग टर्म, जो मुझे हेल्प करेंगी हमेशा स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये दो तरह की टेक्निक है, हम दोनों यूज करेंगे, ठीक है, दोनों मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो नंबर वन थिंग इज फास्ट एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग कौन सी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं? नंबर वन इज डीप ब्रीथिंग, नंबर टू इज चेंज बॉडी पोस्चर एंड वॉकिंग, नंबर थर्ड इज गाइडेड इमेजरी, नंबर फोर इज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, एंड नंबर फाइव इज राइटिंग डाउन योर थॉट, एंड नंबर सिक्स इज चैलेंज योर थॉट। हम इनको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। ये वो है जो कि आपको फौरी तौर पे, मेरे पे स्ट्रेसर आ गया, मेरे पे एकदम से कोई स्ट्रेसर आ गया, मैंने उसको कैसे मैनेज करना है, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। सो क्या हो सकता है? नंबर वन इज डीप ब्रीथिंग। आप बैठे हुए हैं, आप लंबे और गहरे सांस लें, ठीक है। आप, इससे क्या होता है कि बेसिकली जब आपको स्ट्रेस लेवल होता है, आपका सांस, आपकी ब्रीथिंग बढ़ जाती है ना। सो आपने क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको नॉर्मलाइज लेकर आना है। उसके लिए क्या है कि हम डीप ब्रीथिंग इस्तेमाल करते हैं। आपने लंबे और गहरे सांस लेने हैं, उसका क्या तरीका होता है? आप नाक से सांस लें, ठीक है, और आपने अपने पेट में हवा फुल करनी है, और देन आपने क्या करना है, इनहेल अपने नोज से करना है, एक्सहेल अपने माउथ से करना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम 4-7-8 ब्रीथिंग कर सकते हैं। 4-7-8 ब्रीथिंग क्या होती है? 4 सेकंड के लिए आपने क्या करना है, इनहेल करना है, ठीक है। 7 सेकंड के लिए आपने उसको रेस्ट देना है, और 8 सेकंड्स के लिए आपने एक्सहेल करना है। आप 4-7-8 ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, आप वैसे लंबे और गहरे सांस ले लें, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है कि आप बहुत बेहतर फील करेंगे, और ये आप बार बार रिपीट करें। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि जब मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं 1 मिनट का टाइमर अक्सर सेट करती हूँ और लंबे और गहरे सांस लेने लग जाती हूँ। जब मुझे लगता है मैं असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, मैं ये वर्कशॉप नहीं कर पाऊंगी, तो ये मैं करती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं, ये बैठे बैठाए हो सकता है, कहीं भी आप इवन वर्क प्लेस पर भी लंबे और गहरे सांस ले सकते हैं। और एंजाइटी भी अगर किसी को होती है, पैनिक अटैक भी होते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है, दैट इज डीप ब्रीथिंग, ठीक है। तो ये पहली टेक्निक है। दूसरी है चेंज योर बॉडी पोस्चर एंड वॉकिंग। तो होता क्या है, अब इसमें सबसे बेहतरीन चीज है, अब आपको देखें, एकदम से मैं ऑफिस में बैठी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, मुझे एकदम से एक काम दे दिया गया, असाइनमेंट आ गई है, एकदम से रूल्स चेंज हो गए हैं, एकदम से किसी ने मेरे बारे में बातचीत कर दिया है। आप देखेंगे कि जब आप वापस आए हैं ना, तो वो आपका वो उस तरह से मेंटल स्टेट नहीं होगी जिस तरह से पहले थी, ठीक है। और क्या चीज हो सकती है? और ये चीज है कि जब बेसिकली जब हम डिप्रेस होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे ज्यादातर क्या होता है, इस तरह से हमारा मुंह होता है, आंखें नीचे हैं, शोल्डर झुके हुए हैं, ठीक है। सो ये हमारा फेस होता है ज्यादातर, आप डिप्रेस लोगों की शक्ल और ये देखिएगा। तो बेसिकली ये एक सुपर हीरो लाइक पोस्चर है, ये आप उस जगह पे तो शायद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप घर में या कहीं मौजूद हैं, ये बड़ा हेल्पफुल करता है, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प कर सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने एक सुपरमैन की पिक्चर लगाई हुई है, सुपरमैन इस तरह से पोस्टर में खड़ा है ना, इसकी कुछ वजह है, दैट इज कॉल्ड सुपर हीरो पोस्टर। वो जब सर ऊपर करके खड़ा है तो उसका कॉन्फिडेंट है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस है। और जब आप हाथ इस तरह से जैसे उसने रखे हुए हैं, उस तरह रख के आप खड़े होते हैं, तो आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए ना इस तरह कॉन्फिडेंटली, आपको बहुत स्ट्रेस है, बड़ी टेंशन है, बड़ी परेशानी है, जो भी जिस भी चीज की, आप इस तरह से खड़े हो जाएं, तो क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो हार्मोन जो है वो नीचे जाने लग जाता है, और आप बहुत बेहतर फील करने लग जाते हैं। तो ये चीज आपको इंस्टेंटली स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। और क्या कर सकती है, दैट इज गाइडेड इमेजरी। ये एक टेक्निक है, इसको हम कैसे यूज करते हैं? इसमें क्या करना है, आपने कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद करनी है, लंबे और गहरे सांस लेने हैं, ठीक है। अपने आप को इमेजिन करना है कि आप एक पीसफुल जगह पर मौजूद हैं। लाइक कोई भी, अगर आपको कोई हिल स्टेशन पसंद है, कोई आपको जगह खूबसूरत पसंद है, कोई सीन पसंद है, आपने महसूस करना है आप वहीं पहुंच गए हैं, यू आर देयर, ठीक है। अपने आप को देखें कि वहां आप जो वहां पे करना चाहते हैं ना, आप देखें कि आप वो कर रहे हैं। आप वो जहां पर जिस तरह से उसको एंजॉय करना चाहते हैं, जो जो चीजें देखना चाहते हैं, जो जो सीन्स देखना चाहते हैं, देखें कि आप वो देख रहे हैं।
जो जो कुछ आप फील करना चाहते हैं फुली उसको फील करें कि हाँ वो हो रहा है, और जैसे आप जिस तरह उसको एंजॉय करना चाहते हैं कंप्लीटली करें, और अपने आप को वहां रेस्ट करने दें। ठीक है, आप कुछ मिनट, 5 मिनट आंखें बंद करें, यू आर फीलिंग लाइक यू आर देयर, आप उस खूबसूरत जगह पर हैं, आप वहां महसूस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, 5 मिनट तक अपने आप को रहने दें, खासतौर पे तब तक जब तक आप बेहतर महसूस ना करें। हाँ, हो सकता है इन द स्टार्ट आपको लगे कि मैं स्ट्रेस हूँ, मैं कैसे, आपने अपने आप को लेकर जाना है। ठीक है, आपने अपने आप को बावर करवाना है कि मैंने ही खुद को स्ट्रेस में से निकालना है। आंखें बंद करनी है, खूबसूरत जगह पर आपने महसूस करना है, फील करना है, हेयर करना है। ठीक है, 5 मिनट्स तक वहां रहें और फिर 3 तक काउंट करें और वापस आ जाए, अपनी आईज ओपन कर दें। तो आप इसमें बेहतर महसूस करेंगे। ठीक है, एक ये टेक्निक आपकी इंस्टेंट हेल्प कर सकती है। एक चीज मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, अगर तो आप अपनी मेडिटेशन की रूटीन बना लें तो ये लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है, क्योंकि मेडिटेशन की अगर जैसे एक्सरसाइज की आदत हो जाए तो आपकी बॉडी के बहुत फिजिकली हेल्थ को वो बहुत मुतासर करती है, बहुत अच्छा करती है। इस तरह से एक्सरसाइज हमारी मेंटल हेल्थ में भी अच्छी है, पर मेडिटेशन बहुत अच्छी है। तो मेडिटेशन का एक पार्ट होता है डेट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइंडफुलनेस ये होता है टू बी फुली अवेलेबल इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि आप, होता क्या है जब आप स्ट्रेस होते हैं ना तो आप प्रेजेंट में मौजूद नहीं होते, या तो आप पुरानी कोई बात अपने माइंड में रिपीट कर रहे होते हैं, या फिर क्या होता है, या फिर आप जो है ना वो उस जगह पे क्या कहते हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार ये अगर हो गया तो मेरी प्रमोशन का क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा मेरे साथ, में काम कर पाऊंगा, पेपर में पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो आप इस तरह की चीजें सोच रहे हुए होते हैं। ठीक है, तो आप प्रेजेंट में मौजूद नहीं होते। तो माइंडफुलनेस में आपने क्या करना है, आपने अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना है। आप ऐसा करें कि आप इर्द गिर्द देखें कोई 2 से 3 चीजें जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 चीजें, उन पर अपना आपने फोकस लेकर आना है। 2 से 3 साउंड्स जो कि आप सुन सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 चीजें जिनको आप हाथ लगा सकते हैं, उनको आपने हाथ लगाना है। 2 से 3 आपके जो कोई इस तरह के मतलब आप स्मेल कर सकें। ठीक है, 2 से 3 इस तरह की कोई खुशबू हो, कुछ इस तरह की बू हो जो आप स्मेल कर सकें। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, आपने फोकस करना है इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप चीजों को देखना शुरू करेंगे, 3 4 चीजें ढूंढेंगे कि मैं क्या देख सकता हूँ, मैं किन चीजों को हाथ लगा सकता हूँ, कौन से साउंड्स 3 4 मुझे सुनाई दे रहे हैं, कौन सी चीजें मैं स्मेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली फोकस क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंट मोमेंट। और एक चीज ये भी हो सकती है कि आप अपनी ब्रीथिंग के ऊपर जो है ना फोकस लेकर आए, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट नेचुरली, कि कैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं, फोकस करें कि हाँ कैसे मैं कर रहा हूँ, उसको देखें। इस तरह क्या होगा कि दरमियान में, मैं ये नहीं कहती थॉट्स नहीं आएंगी, थॉट्स आएंगी, लेकिन आपने अपना फोकस दोबारा क्या लेकर आना है, उस ब्रीथिंग साइकिल पे। ठीक है, सो ये आपको हेल्प करेगा। आएगी थॉट्स, आने दें, थॉट्स को ऐसे आने दें जैसे ट्रैफिक गुजर रही है सिग्नल के साथ, लेकिन क्या है, आपने फोकस अपना दोबारा उस चीज पर लेकर आना है। तो ये चीज आपकी हेल्प कर सकती है। राइटिंग डाउन योर थॉट्स, ये बहुत हेल्पफुल टेक्निक है। ये मैं खुद, मेरे पास डायरी होती है, अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं डेली उस पर अपनी थॉट्स लिखती हूँ। आप भी ये कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है। और अगर आपके पास डायरी नहीं है, आप डायरी नहीं रखना चाहते, लोगों को लगता है कि ये मेरी पर्सनल आइटम होती है, पढ़ लेगा कोई, हमारे मोबाइल बड़े अच्छे चीज है, उसके अंदर नोट्स होते हैं ना, हमारे सबके पास नोट पैड, ये वो, आप लिखें डेली जो माइंड में चीजें आती हैं, आप रूटीन भी डेली की बना सकते हैं। और एक चीज आप और कर सकते हैं, जब आप स्ट्रेस है ना, बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रेस है, दिमाग में बहुत कुछ पक रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, पेपर लें, पेन लें, ईच एंड एवरीथिंग नोट डाउन ऑन इट, सब कुछ उस पर डंप कर दें, सब कुछ लिख दें, जो आपके दिमाग में किसी के बारे में जो चल रहा है वो सब लिख दें, आप बेटर फील करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप अपनी थॉट्स को जर्नल करें, राइट डाउन करें, और ये आपको मॉनिटर करने में भी हेल्प कर सकती है कि मैं फलां वक्त पर कैसा सोच रहा था। तो ओके, अब ये एक चीज बड़ी जबरदस्त है, ये स्पेशली जिन लोगों ने बोला ऑफिस पॉलिटिक्स। ठीक है, आप देखें, मुझे कोई बात कह गया है और वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रही, किसी ने मुझे मेरी परफॉर्मेंस पे टॉन्ट कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर सवाल उठाया, मैं क्या कहूंगा, ये है ही ऐसा, मेरे साथ होता ही यही है, मेरे साथ होता ही ये क्यों है, मुझे सारे सारों को मैं ही नजर आता हूँ। ये इस तरह के सवाल हम खुद से करते हैं ना, मुझे असाइनमेंट बॉस को मैं ही नजर आता हूँ हमेशा, मुझे ही काम ज्यादा दे जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह के सवाल हम करते हैं वाई बेस्ड क्वेश्चन। अब पता है कि काम भी मुझे करना ही करना है, मैं मना तो कर नहीं सकता, मैं अंदर ही अंदर कुड़ी जा रहा हूँ। सो मुझे उस वाई बेस्ड क्वेश्चन की बजाय मुझे खुद से अच्छे सवालात करने हैं, वाई की बजाय मुझे व्हाट बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, हाउ बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। कौन से अच्छे सवाल आप कुछ कर सकते हैं, व्हाट इज गुड इन इट, इसमें अच्छा क्या है, नाउ यू आर चैलेंजिंग योर माइंड।
कि भाई इसमें अच्छा तलाश करो, इंस्टेड के बुरा बुरा तो बहुत नजर आ रहा है। पहले तो शायद आपको लगे नहीं नहीं कुछ भी अच्छा नहीं, लेकिन अगर आप ढूंढने लगे ना तो आपको हर सिचुएशन में कुछ अच्छा मिल सकता है। व्हाट इज गुड इन इट? व्हाट डू आई नीड टू बिलीव इन ऑर्डर टू फील गुड? मैं ऐसा क्या बिलीव करूं, क्या ऐसा यकीन कर सकता हूँ कि मैं अच्छा महसूस करूं? मैं इससे सीख क्या सकता हूँ? ये जो सिचुएशन मेरे साथ हुई है, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट? जब आप अपने आप को कोसने की बजाय, बुरा सोचने की बजाय आप अपना फोकस लर्निंग की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे कोलीग ने टॉन्ट कर दिया है, बुरा भला कह दिया है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? मैं नेक्स्ट टाइम इसको ऐसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट टाइम ये कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम उसको ऐसे जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब ये मेरे साथ होगा तो मैं डिफरेंटली क्या करूंगा? अब आपके पास स्ट्रेटेजी भी आ गई है। हो सकता है शुरू में आपको इन सवालात के जवाब ना मिले, लेकिन ये इतने पावरफुल क्वेश्चन है ना। मेरी एक कोलीग है, उन्होंने कहा कि उनके फादर की डेथ हो गई थी, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। उन्होंने कहा ये क्वेश्चन उन्होंने कंटिन्यूसली अपने आप से पूछे थे। शुरू में जवाब नहीं मिलते थे, लेकिन एक वक्त आया था ये सवाल के अच्छे जवाब उनको मिलना शुरू हो गए थे। सो अच्छी लर्निंग्स ना, तो आपने अपना फोकस इस तरफ लेकर आना। सो ये क्वेश्चन बहुत पावरफुल है, आप नोट कर लें, लिख लें और अपने आप से ये पूछें। अपना फोकस प्रॉब्लम की बजाय आपने इस पर लेकर आना है कि व्हाट इज गुड इन इट, what do I need to believe in order to feel good, what can I learn from it, what can I do differently next time? So क्या होगा, आपको प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशंस नजर आना शुरू हो तो आएंगे। सो ये बेसिकली कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि इंस्टेंटली आपको हेल्प कर सकती हैं। एक दफा दोबारा देख लेते हैं क्या थी वो। नंबर वन पे मैंने आपको ये बताया, डीप ब्रीथिंग आप कर सकते हैं, आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, ठीक है। आप आंखें बंद करके अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं ना पीसफुल प्लेस, ठीक है। आप माइंडफुलनेस करें, विद उस मोमेंट में वापस आ जाएं। राइटिंग डाउन योर थॉट्स बहुत हेल्प कर सकती है, और अपनी थॉट्स को चैलेंज करें। ये बैठे बैठाए हो जाता है ये क्वेश्चन, जब आप जुबानी कर लें, ये इतने पावरफुल हैं ये, और राइटिंग डाउन थॉट्स, ये दोनों मेरे टूल्स हैं जो कि मुझे डेली रूटीन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ टेक्निक्स थी जो कि फास्ट एक्टिंग थी। आई होप आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं, आप लोगों को आप लोग इससे रिलेट कर रहे हो। मुझे बताएं कि सो फार सो गुड, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ? हेलुसिनेट, कीप रिलैक्स, ओके, ठीक है। आप अपने शूज उतार देते हैं, दैट्स ग्रेट। हम अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस करें ना तो वो चेंज कर देती है। पैनिक अटैक और आर अ सीरियस कंडीशन, दीज अटैक आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय प्रेशर। या यू आर राइट, पैनिक अटैक मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो ओके, ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है। हम आगे चले कि लॉन्ग टर्म हम कैसे जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं। ये वो एक्ट थी जो कि शॉर्ट शॉर्ट टर्म अब फौरन फौरन आपको हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकती हैं। नंबर वन इज फाइंड आउट योर प्रेफरेंसेस इन योर लाइफ। हमें पता ही नहीं होता, हम लाइफ के डगर के साथ चल रहे होते हैं, हमारी प्रेफरेंसेस क्या हैं। पहले तो आपने ये ढूंढनी है। बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक की आदत होनी चाहिए, एक्सरसाइज की रूटीन होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड पर फोकस होना चाहिए। एंड जैसे किसी ने मुझे बोला था कि लर्न टू से नो, तो लर्न टू से नो और कम्युनिकेट योर नीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इनको हम बारी बारी देखते हैं ये क्या है। सो बेसिकली आप प्रेफरेंसेस कैसे ढूंढ सकते हैं अपनी लाइफ में? अब देखिए, हमें पता ही नहीं होता हम क्या चाह रहे हैं हमारी जिंदगी में, हमारी क्या प्रेफरेंस है, ठीक है। हम क्या वैल्यू करते हैं। आप कुछ चीजें लिखें जो आप अपनी लाइफ में ट्रूली वैल्यू करते हैं, ठीक है। आप देखें कि मेरी लाइफ में व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, लिस्ट बनाए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, फैमिली, ठीक है, घर वाले लोग, कोई भी, सारी प्रायोरिटीज लिखें। माय करियर, माय प्रोफेशन, माय चिल्ड्रन, वट एवर, जो भी है। फिर उसको देखें कि 2 से 3 कौन सी प्रायोरिटीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उनको आप लोग प्रेफरेंस में रखें। अब क्या है, हम क्या कर रहे होते हैं, हम सारी शादियां भी अटेंड कर रहे होते हैं, सारे फ्यूनरल्स में खिलाफ नहीं हूँ, बट ये है कि आप खुद अपने स्ट्रेसर्स, जैसे मैं हर एक का काम पकड़ लेती थी और मुझे लगता था कि मैं इसको ना करूंगी तो मैं इसके साथ बुरा कर रही हूँ, गुनाह कर रही हूँ, लोगों की उम्मीदें। ऑफ कोर्स दैट इज गुड, लेकिन ये है कि आप एक कर लें, 2 कर लें, लेकिन जब आपको पता है कि आपकी डेडलाइंस और जो प्रेफरेंसेस आपकी हैं वो मुतासिर हो रही हैं, तो फिर आप उसको मत लेकर आए, वो डिस्ट्रैक्शन है फिर आपके लिए। तो आपको पता होना चाहिए मेरी लाइफ में मेरी प्रेफरेंस क्या है, और मुझे अपना ज्यादा टाइम इनको देना है, और बाकी चीजें मेरे लिए क्या है, डेटा डिस्ट्रैक्शंस फॉर मी। वो मैं करूंगा जरूर, लेकिन क्या है कि मैं कभी कभी कर लिया करूंगा। जहां मैं डेली करता हूँ, मैं महीने में 2 या 3 दफा कर लिया करूंगा,
ठीक है, मैं कभी कभी कर लिया करूंगा, या मैं उसके लिए एक टाइम रख लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी डिस्ट्रक्शन है, ये मुझे हटा रही है मेरे अपने मेन गोल से। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई, बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट हमारी हर चीज के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है माइंड बॉडी गट का, आपकी गट गट का बहुत कनेक्शन होता है, आपके स्टमक का बहुत कनेक्शन होता है, माइंड का और गट का स्ट्रोंगली ये जुड़ी हुई है एक दूसरे से। जब आपका स्ट्रेस होता है तो आपका गट डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो आप स्ट्रेस भी फील करना शुरू हो जाते हैं, आपको लगता है कि जैसे आप घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है। सो अच्छी डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें सारे आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सारे बैलेंस्ड हो। और इसके अलावा ये है कि अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल, नेचुरल जो चीजें हैं, पानी पानी का इंटेक बहुत जरूरी है कि हम 1 लीटर कम से कम एक दिन में पानी तो जरूर पिएं। पानी का इंटेक बहुत जरूरी है, बहुत फॉर अवर फिजिकल हेल्थ एंड फॉर अवर मेंटल हेल्थ। ओके। अच्छा, एक चीज जो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प कर सकती है, दैट इज योर सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या है? जो बातचीत हम खुद से करते हैं, हमारे दिमाग में हम अपने आप से बहुत बातचीत करते हैं, बेशक वो आप ऊंची आवाज में नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को माइंड में अपने आप को बहुत कुछ कह रही होती हूँ। जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं हम बहुत मोहतात होते हैं ना, लेकिन जब हम खुद से बातचीत करते हैं ना, हम अल्फाज को नहीं देखते, हम कुछ भी खुद को कहते रहते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होना, ये मेरे बस की बात नहीं है। इस तरह के सवाल, मेरे साथ ये क्यों होता है, इस तरह के सवाल जब आप करते रहेंगे ना तो आपको अच्छे जवाब नहीं मिलेंगे। बात यह है कि आप खुद से भी ऐसे बातचीत करें, जब हम सारे, हमारा फ्रेंड कोई प्रॉब्लम में हो, हम कितने अच्छे मोटिवेटर बने होते हैं ना, हम बड़े उसको बड़े अच्छे मशवरे दे रहे हैं। सो वही प्रॉब्लम जब आपके साथ आ रहा है, आप अपने लिए वो अच्छे मोटिवेटर बन जाएं। आप समझें कि आपका फ्रेंड प्रॉब्लम में है, आपने अपने आप को करना है। मैं खुद को खड़े होकर कई दफा समझाती हूँ, फंसा ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे करना है, तुम ठीक हो जाओगी, हो जाएगा। जैसे मेरी दोस्त मेरे सामने बैठी है, तो ये इंस्टेंटली आपको फायदा देगा। और लॉन्ग टर्म में जब आप अपनी बातचीत पर, अपनी लिंग्विस्टिक पर, जो बात आप खुद से कर रहे हैं, जब आप तवज्जो देना शुरू कर देंगे ना, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आप अच्छा सोचने लग जाएंगे, अच्छी बातचीत करने लग जाएंगे। और ये कुछ एफर्मेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एफर्मेशन क्या होता है? वो बेसिकली नेगेटिव स्टेटमेंट जो आप खुद से बहुत डेली बेसिस पे बोलते हैं, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम नॉट ब्रेव पर्सन, तो आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। आई एम लव, आई एम ब्रेव, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम गुड इनफ। और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है आप, मतलब ये है कि हैबिट बना सकते हैं चलते फिरते। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को जो मुझसे 1-on-1 सेशन लेते हैं, मैं उनको डेली टास्क देती हूँ, अपने 5 से 6 दफा डेली ये स्टेटमेंट जो है वो अपने आप को बोलनी है, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ। सो ये आपकी हेल्प कर सकता है। और नेक्स्ट चीज, अच्छा, एक एक्टिविटी आपके लिए, कोई एक नेगेटिव स्टेटमेंट सोचें, कोई एक नेगेटिव स्टेटमेंट जो आप खुद को बहुत ज्यादा बोलते हैं, उसको पॉजिटिव में तब्दील करें और मुझे चैट बॉक्स में बताएं वो क्या नेगेटिव स्टेटमेंट है जो आप खुद को बोलते हैं, जो आपके माइंड में चलती है, और उसको पॉजिटिव कैसे आप उसको तब्दील कर सकते हैं। जी, काइंडली फ्यू मिनट्स फोकस ऑन इमोशनल स्ट्रेस। ओके, जी, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट जो आपके माइंड में चलती हो, आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं इमोशनल स्ट्रेस? क्योंकि ये सारा इमोशंस में ही आता है। स्ट्रेस जब ट्रिगर करता है तो डेफिनेटली आपके इमोशंस भी ट्रिगर कर जाते हैं, आपको गुस्सा भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि एंजाइटी आपको डेफिनेटली फ्यूचर के हवाले से महसूस होने लग जाती है। इसके अलावा और इमोशंस में भी ये सारी टेक्निक्स जो है ना, ये आपको इमोशंस में भी हेल्प कर सकती है। गुस्से के लिए, सबके लिए, आप अपनी क्या करें, चलें फिरें, ठीक है, आप 15 मिनट वॉक करेंगे, गुस्से में भी आप तब्दीली महसूस करेंगे, ठीक है। सो आप ये है कि अगर कुछ और इसके बाद, डू यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स स्पेसिफिकली जूनियर स्टाफ? ओके, चलें, ये क्वेश्चन में मैं आपको भी अलाउ करूंगी, तो आप मुझसे ये पूछ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप रख लें। डोंट नो हाउ टू मैनेज थिंग्स स्पेसिफिकली। ओके, इंट्रोवर्जन इज अ बॉटल नेक फॉर मी। हाँ, ये इसके बारे से भी बात करते हैं। ये सारी चीजें हम, आप मुझसे क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा, मैं भी आप लोगों को अलाउ करती हूँ। बस ये कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, मैं कंप्लीट कर लूँ। सो ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, ओके, एक्सरसाइज रूटीन। ये हमें पता है फिजिकली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडोर्फिन एक हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड पेन रिलीवर हार्मोन, जो कि हमारे हैप्पीनेस हार्मोन 4 होते हैं, उसका एक हिस्सा एंडोडॉर्फिन भी है, ठीक है। सो आप जब एक्सरसाइज करते हैं, ये आपका मूड इंप्रूव करती है, ठीक है, आपकी स्लीप रूटीन बेहतर होती है, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों बेहतर होती है।
तो इसलिए एक्सरसाइज की रूटीन होना बहुत जरूरी है। एक चीज और जो आपको हेल्प कर सकती है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, शुक्रगुजारी में जिसको हम अल्फाज में बोलते हैं। होता क्या है, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा होता है या डेली बेसिस पर अगर आप ग्रेटिट्यूड की अपने आप को आदत डाल दें। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा होता है, आप क्या करते हो, आपको हर टाइम इस तरफ क्या नजर आता है, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। आप वो सब भूल जाते हैं कि आप खुदा देखिए, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे एकदम कोई मसला है, मैं सब भूल जाऊंगी मैं कितने अच्छे एनवायरनमेंट में बैठी हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं किस मुकाम पर हूँ, मेरी क्या डिग्रीज है, लोग किस तरह, मैं सब भूल जाऊंगी, सिर्फ मुझे क्या नजर आ रहा होगा, सिर्फ मसला मसला मसला। सो आपने डेली बेसिस पे अपनी आदत बना लें कि 3 से 4 चीजें, स्पेशली 5 चीजें खुद से रोज सोते हुए या सुबह उठ के पूछें कि क्या 5 चीजें हैं कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हो सकता हूँ आज, कौन सी 5 चीजें हैं जिनमें अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हूँ। तो डेली बेसिस पे जब वो 5 चीजें आप करना शुरू करेंगे ना, यकीन करें, जब जब ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप अपने माइंड की ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएंगे आप सोच रहे होंगे मैं क्या, इसमें क्या बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है ये नहीं हुआ, ये हो गया तो अल्लाह का शुक्र है ये नहीं हुआ, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ग्रेटफुलनेस ढूंढेगा प्रॉब्लम ढूंढने की बजाय। सो डेली बेसिस पर एक रूटीन सेट कर ले, ठीक है। ये तो आसान सा काम है, आप सुबह उठ के अल्लाह ताला का सोच सकते हैं कौन सी चीजें हैं जिन पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हूँ, या सोते हुए कि आज कौन सी चीजें हैं अल्लाह की नेमतें जिनका मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ। ओके, सो अच्छा, अब आपकी एक्टिविटी ये है कि चैट बॉक्स में 2 चीजें लिखें जो कि आप जिनके बारे में आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। कौन सी 2 नेमतें जो कि आज आपको मिली हैं, और यू कैन से लाइक थैंकफुल टू अल्लाह, जो कि आप अल्लाह ताला को शुक्रगुजार कर सकते हैं। कौन सी 2 नेमतें, कोई 2 नेमतें हैं इस तरह की आपकी, कोई 2 ग्रेटफुलनेस, कोई 2 चीजें जिन पे आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हो आज? कोई नहीं है? Can see here for my son and current situation great. I can breathe. I can eat 3 times a day. That's great. Job and family बेशक, ऑडिट रिव्यू, गुड फूड एंड एबल टू टॉक टू माई मदर, या ये भी बहुत बड़ी नेमत है, एक माँ का होना और उससे बातचीत करना, हेल्थ एंड फैमिली, दैट्स ग्रेट। तो हमारे सबके पास बहुत सी नेमतें हैं, और हम डेली बेसिस पर अगर अपने माइंड को इस तरफ लेके जाने लग जाएं, ग्रेटफुलनेस की आदत डाल दें, तो हम ऑटोमेटिकली स्ट्रेस सिचुएशन में भी ग्रेटफुलनेस देखने लग जाएंगे। ओके, सो दैट इज माई लास्ट पॉइंटर, ठीक है। और ये है कि आपको नो सीखना है। होता क्या है, हम ना नहीं करते, ना हमें ना करना आता है। और जब मैं ना नहीं कर पाती थी, और जब शुरू शुरू में मैंने ना करना शुरू किया तो मुझे इतना गिल्ट होता था कि मैं लोगों के साथ बुरा कर रही हूँ, मैं लोगों के साथ, लोगों की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बट एक बात याद रखिएगा, सेइंग यस टू एवरीवन मीन्स सेइंग नो टू योरसेल्फ। करें, सबकी मदद करें, लेकिन कम से कम अपने आप को जरूर याद रखें, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा टाइम आपका अपने साथ गुजरता है। जब आप अपना ख्याल नहीं करेंगे तो आप दूसरों का भी नहीं कर सकते। चीजें इतनी सारी आपने रखी हैं, ठीक है, तो आप कोलैप्स कर जाते हैं, किसकी मदद करेंगे? अगर लॉन्ग टर्म में लोगों की मदद करनी है, आप अपनी एक बाउंड्री सेट कर लें, मैं लोगों की मदद करूंगा, लेकिन जब मेरे ऊपर ये काम है तो मैं ना कर दूंगा, और मुझे इस पे पछताना नहीं है, क्योंकि मुझे अपना भी ख्याल रखना है। मैं बाद में कर दूंगा, मैं किसी और तरीके से उनको मना कर सकता हूँ, ठीक है। जो आपके अपने हैं ना, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, ठीक है। ये बात याद रखें कि वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, जो वाकई आपको चाहते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो आपके साथ। अननेसेसरी लोग निकल जाएंगे नो कहने से आपकी लाइफ से, लेकिन जो ट्रूली आपके साथ हैं वो जेन्युइन लोग आपके साथ रहेंगे। तो कभी कभी इसको बुरा मत समझें कि मैं नो कह रहा हूँ, और अपनी नीड जरूर कम्युनिकेट करें, जॉब प्लेस पर कम से कम जाके बताएं जरूर। जैसे मेरे जैसा बंदा बताता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, मुझे कुछ मसला हो रहा है, वो चुप करके बर्दाश्त करता जाता है, जब बहुत तब वो बोलता है। तो आप बताएं जरूर कि देखें ये जॉब, आप बेशक अच्छे अल्फाज में बता सकते हैं, ये बात जाके कहे बॉस आपने मेरे में ये काम दिया, मैं ये नहीं कर सकता, देखें मुझे ये फील हो रहा है, थोड़ा सा अगर किसी और को बांट दें, आप उनके माइंड में एक बात डाल रहे हैं, ठीक है, अपनी नीड थोड़ा सा बता रहे हैं। कभी ना कभी अगर आप उनके अच्छे एम्प्लॉय होंगे, वो इस बात पे सोचेंगे जरूर, तो अपनी नीड जरूर कम्युनिकेट करें, बात जरूर कम्युनिकेट करें, और नो करना जरूर सीखें। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, आई होप कि आप लोगों की जो है वो इन्होंने हेल्प की होगी, ठीक है। ये आज का जो मेरा सेशन था, कुछ टेक्निक्स हमारी लॉन्ग टर्म के लिए थी, और कुछ टेक्निक्स हमारी शॉर्ट टर्म के लिए थी। ओके, आई वांट टू टॉक फ्रीली ऑन टॉपिक्स इन मीटिंग विद कोलीग, हाउ कैन आई ओवरकम द इंट्रोवर्टेडनेस, काइंडली शेयर प्रेजेंटेशन। ओके, तो आई होप कि आप लोगों की इन सारी चीजों ने मदद की होगी, ठीक है।
तो अब मैं कहूंगी कि आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप लोगों को हम अलाउ करते हैं कि आप कोई सवाल पूछना चाहे, आपके कैमरा सॉरी आप अनम्यूट करें तो आप क्वेश्चन पूछ सकें। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे ये आया है। ओके, थैंक फॉर ज्वाइनिंग सर, लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग यू ऑन कमेंट्स। आप लोग हैंड रेज कर दें, आपको क्वेश्चन के लिए आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। कोई सवाल करना चाहिए, जो इंट्रोवर्टेडनेस की आप बात कर रहे हैं, अगर आप कर सकें। हाउ कैन वी कन्वर्ट इंट्रोवर्जन इनटू ओवर स्ट्रेंथ? ओके, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। अगर मैं आपको रियल लाइफ में बताऊं, एक वक्त था मैंने अपने आप को इंट्रोवर्ट लेबल किया हुआ। नेवर लेबल योर सेल्फ एज इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। यू आर नॉट इंट्रोवर्ट और ये आपकी पहचान नहीं है। मैं जब आप अभी भी मेरे ऑफिस में मतलब अगर आप मेरी जॉब प्लेस पे जाके देखें, मैं 8 दिन नहीं बोलती अगर मुझे कोई 8 दिन ना बुलाए, क्योंकि मैं बहुत टू दी पॉइंट बात करने वाली बंदी हूँ। तो मैं वहां इंट्रोवर्ट होती हूँ। नाउ मैं क्या हूँ? मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। सो ये है कि हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। सो जो डिमांड है ना, हम वो होते हैं। अपने आप को लेबल, एक तो अपने आप को लेबल हटा दें कि आप इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है। और आप देखिएगा कि जो इंट्रोवर्ट होता है, जिस जगह पे वो बेहतर महसूस करता है वहां पे वो बहुत बोलता है, वो एक्सट्रोवर्ट बन जाता है। कुछ स्पेसिफिक लोगों के सामने वो एक्सट्रोवर्ट होता है। तो हम एट द मोमेंट, किस मोमेंट में हम इंट्रोवर्ट होते हैं, किसी मोमेंट में हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ये हमारी पहचान नहीं है, ठीक है। सो इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं? देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप मीटिंग्स में जाना चाहते हैं, आप जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूं कि आई वॉज इन द प्लेस, ठीक है। मैं एक जगह पे थी, जैसे एक जगह पे मुझे बहुत सारे लोग थे, मुझे बोलना था, ठीक है। अच्छा, मैं वहां बोली हूँ, मेरे हाथ यूं यूं कप कप आ रहे थे, लिटरली आप ये देखें। और मेरा मोबाइल हाथ में था, मुझे मोबाइल में से देख कर वो चीज पढ़नी थी। सो मुझे सारे सामने से आवाजें आने लगी, इसके हाथ से मोबाइल गिर जाना, हाय इसके हाथ किस तरह कप कपा रहे हैं। मैं वहीं बैठी रही, मैं वो वहां से बोल के उठी थी। उसके बाद वहां से उठने के बाद मैंने अपने आप को अप्रिशिएट किया था कि कंसा, ये तुम्हारी आज की जीत क्या है। अपनी छोटी छोटी चीजों को, अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करें कि तुम्हारी आज की अचीवमेंट क्या है, तुम वहां से बोल के उठी हो। सो आप इंट्रोवर्जन को एक्सट्रोवर्जन में तब्दील करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बोलने अपने आप को चैलेंज करें। मेरा पहला वेबिनार सेमिनार ऐसा नहीं था जैसा आज है, ठीक है। सो ये हर के बाद बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ। आप अपनी इंट्रोवर्जन को एक्सट्रोवर्जन में बदल सकते हैं। इट्स नॉट योर, ये आपकी पहचान नहीं है, ये आपकी असलियत नहीं है। आप इससे बहुत आगे की चीज है। जी, ओके। और क्या क्वेश्चन आया? आप लोग में से कोई अनम्यूट नहीं करना चाह रहा अपने आप को? ओके, योर स्टोरी डियर सबमिट। पार्टिसिपेंट्स, काइंडली अपना माइक ओपन करके अपना हैंड रेस कर दें ताकि मैं आपका माइक को अनम्यूट कर दूं। थैंक यू। जी, परफॉर्मेंस इवन ओवर हार्मोन, स्ट्रेस अफेक्ट। जी बिल्कुल, स्ट्रेस हमारी पूरी बॉडी को बिल्कुल अफेक्ट करता है, क्योंकि आपका माइंड और आपका बॉडी इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये आपका पावर हाउस है, दैट इज योर सीपीयू ना। जैसे सीपीयू कंप्यूटर का, जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, वो पूरा कंप्यूटर कंट्रोल करता है, दैट इसी तरह आपका माइंड जो है ना, सिग्नल भेजता है। जब आपको लग रहा है आप स्ट्रेस है, आपका माइंड आपकी पूरी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि जो है ना, यू आर नॉट ओके, और वो सारी उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। तो डेफिनेटली ये आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल कर रहा होता है। और जब आप स्ट्रेस होते हैं तो आपका हर चीज जो है वो अफेक्ट होती है। Your story is similar to my story, taking pressure without some. My neuromedicine doctor suggested the same you discussed. Kindly share your presentation at. ओके, आप पॉइंटर्स बना लें। मैंने कितनी कितनी देर दिखाया, आप मेरे पॉइंटर्स नोट कर ले, ठीक है। आपकी हेल्प करेगा ये सब कुछ। ओके, यूज, ठीक है। कोई और क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहा है? आप लोग हैंड रेज करें, ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, मैं आपकी चीज समझ पाऊंगी, आपको उसके हवाले से जवाब दे पाऊंगी। आप फर्दर मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मैं आपको बता दूंगी। और कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? ठीक है,
तो ये है कि आप लोग जो है वो मेरे साथ फर्दर मतलब पर्सनल अगर आप लोग मेरे साथ करना चाहें कांटेक्ट, तो ये मेरा नंबर है, आप नंबर नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं 101 सेशंस लेती हूँ, जैसे मैंने डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं। मेरे 12 सेशंस होते हैं, आप डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट चीजें, अगर आपके साथ नेगेटिव थिंकिंग का इशू है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, कोई इंजाइटी का, गिल्ट का, तो आप मेरे साथ जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नंबर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया पे आप जो है वो मेरे साथ जो है वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे अकाउंट्स वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। ओके, तो एनुअल इंक्रीमेंट गिव स्ट्रेस, कैन यू गाइड? एनुअल इंक्रीमेंट किस तरह से आपको स्ट्रेस देती है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? कैसे ये आपके लिए स्ट्रेसर बनती है, अतीकुर रहमान? जी, मोहम्मद अकील ने अपना हैंड रेस किया है। जी, आ, सर ये इनको जरा अनम्यूट कर दें, मोहम्मद अकील जफर को। थैंक यू लेट मी स्पीक। एक्चुअली मैंने अपना क्वेश्चन अभी आपसे किया भी था। मेरे लिए स्ट्रेसफुल क्या चीज़ हो जाता है अक्सर, हाउ टू मैनेज माय जूनियर स्टाफ। It ओके, becomes sometimes very problematic to make them understand or to understand them. अच्छा, क्या चीज आपको प्रॉब्लमेटिक करती है? Especially sometimes I think that they are talking something which I cannot hear, or they are raising some issues for me. हम्म, ठीक है, मतलब जो बात आप उनको समझाना चाह रहे हैं वो आपको लगता है कि उनको समझ में नहीं आ रही होती है। Yeah, they are totally negative against, for me, you can say they have all negative incentives or all negative thoughts about me. ओके, अच्छा, कई दफा ये होता है कि जैसे अब आप देखें हर बंदा डिफरेंट है ना। जैसे मैं टीचिंग में हूँ तो हमारी प्रिंसिपल कहती थी कि आपका हर स्टूडेंट डिफरेंट है, आपने देखना है किससे कैसे बात करनी है। सो अगर मैं सबके साथ एक ही जैसा रवैया रखूं, कुछ लोग डांट के होते हैं, कुछ लोग मार के होते हैं, कुछ लोग प्यार के होते हैं। सो होता क्या है, जब अब हम अपनी एनएलपी में देखें ना, तो कुछ लोग हम में से, अगर मैं ये बहुत डिटेल में चला जाएगा, लेकिन हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ चीजें देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग महसूस करना पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको सोचते ज्यादा है।
आप गौर करें कि आपका कौन सा एम्प्लॉय आप उससे बात कर रहे हैं, वो क्या चाह रहा है, वो क्या वो देखना चाहता है। उसको देख के ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, उसको सुन के समझ में आती हैं। अगर आप देखने वाले पर्सन होंगे ना, तो अगर मैं आपको ये प्रेजेंटेशन नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ बोली जाऊंगी, आपके पल्ले नहीं कुछ पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप सुनने वाले पर्सन होंगे, मैं आपको कहूंगी ये देखो, तो आपको दिखे देख के नहीं होगा, आप कहेंगे मुझे डिटेल सुनाओ। तो आपने ये नोट करना है कि आपके उसकी एम्प्लॉय की क्या डिमांड है। अगर आप वाकई चाहते हैं वो आपको अंडरस्टैंड करें, आप उनके साथ अच्छी बातचीत करें, उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। सो इस तरह से हो सकता है कि आप अपना इमेज जब अच्छा बनाएंगे तो वो आपकी बात समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। Thank you. Thank you. I will try. जी, आज के लिए इतना काफी है। बाकी सर उस्मान जो है वो इसको क्लोज करेंगे। मेरी तरफ से जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। बाकी आप पर्सनली मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहे तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है। खंसा अंजुम के नाम से मैं फेसबुक पर मौजूद हूँ। माइंड हीलिंग विद खंसा के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। माइंड हीलिंग विद खंसा के नाम से मेरा फेसबुक पे पेज है। लिंक्डइन पे भी मैं खंसा अंजुम के नाम से हूँ। आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर 1-on-1 सेशंस या डिटेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आई इनवाइट अब्दुल सलाम साहब फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स। जी थैंक यू वेरी मच Ali Ustad to invite me for closing remarks. अच्छा एक मेरा भी क्वेश्चन है, इफ यू कैन आंसर देन फिर हम क्लोजिंग की तरफ भी जाते हैं। जी जी। अच्छा हमारे वर्क एनवायरनमेंट के अंदर हम्म आमतौर पे ये देखा गया है कि जो फीमेल्स काम कर रही हैं, जैसे हमारे ऑफिस में भी काम करती हैं, तो हम्म उनको एक डिफरेंट तरह का स्ट्रेस होता है। और वो स्ट्रेस ये होता है कि उनके वो ये फील करती हैं कि मतलब हमारा जैसे देखा जाए चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो एक मेल डोमिनेटेड हम्म प्रोफेशन है। हम्म तो ये फीमेल के रिलेटेड, यानी आप फीमेल ही अच्छे तरीके से इसका आंसर भी कर सकती हैं। तो ये स्ट्रेस वो किस तरीके से खत्म कर सकती हैं जिसमें वो ये फील करती हैं कि हम मतलब हमारे जो पीयर्स हैं वो फीमेल्स नहीं है, या वो एक एनवायरनमेंट वर्क एनवायरनमेंट के अंदर उतनी तादाद उनको नजर नहीं आती, तो हम्म उनके पेरेंट्स की तरफ से भी बाज़ औक़ात ये आती है चीज़। तो इसके रिलेटेड आपके क्या व्यूज हैं? ओके। सो बेसिकली होता ही है कि हम अगर अपना फोकस देखने लग जाए ना, देखें अब उनको ये देखने की जरूरत है कि उन्होंने फोकस किस चीज पे करना है। जहाँ हमारा फोकस जाता है वहीं हमारी एनर्जी लगने लग जाती है। अब बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि मेल्स के दरमियान रह के भी बहुत कुछ अपने आप को कर जाती हैं, साबित कर जाती हैं। हमारी औरतें उन मैदानों में आजकल जा रही हैं जहाँ पर कभी बिल्कुल। फीमेल्स जाती नहीं थी। सो डिपेंड करता है जहां आपकी एनर्जी जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि देखो ये कितने आदमी हैं, मैं कैसे इनके दरमियान बैठूंगी, ये मुझे हम्म। बोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी एनर्जी नेगेटिव जा रही है। आपने फोकस यस। करना है कि मैं अपनी प्रोग्रेस कैसे बेहतर कर सकती हूँ, मैं अपना नाम इनके दरमियान कैसे बना सकती हूँ। तो आपको बेसिकली फोकस वहां करना है। तो आप अपना फोकस अपनी यस। प्रोग्रेस पर, अगर फीमेल्स के लिए मेरा ये है कि वो फोकस जो है, अगर वो आ गई हैं, उनके पास दो ऑप्शन हम्म। है। मैं कहती होती हूँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो छोड़ दें, क्योंकि शुरू में जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मैं कहती थी मैंने मेल्स क्लाइंट नहीं लेने। तो लेकिन फिर ये है कि नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया कि खनसा तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम्हारे लिए क्लाइंट क्लाइंट है, मेल हम्म। फीमेल नहीं है। तुमने सर्व करना है, तुम्हारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए, सर्विस हम्म। पे। तुमने अपना हम्म। 100% देना है। ठीक है। तुम्हारा बाकी जो भी आ रहा है, सो फोकस आप अपना प्रोग्रेस पे करें। जब आप अपना फोकस अपने माइंड को उस तरफ ले आएंगे कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप हम्म। को प्रूव करना है, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाउ आई वुड क्लोज द टुडेज वेबिनार। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे साहब का, बहुत ज़्यादा आपने टाइम दिया और हमारे जो पिफा के मेंबर्स हैं और पब्लिक एट लार्ज उनको जो है वो एड्रेस किया। और एक सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि NLP, यानी इसके अंदर अगर जाएं हम, और जो आज के जो इश्यूज हैं हमारे प्रोफेशन के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन है जो कि NLP प्रैक्टिशनर्स हमें दे सकते हैं। आप किसको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट टाइम जो है वो इसकी कोई इंट्रोडक्टरी के ऊपर भी कोई वेबिनार जरूर करें, क्योंकि एक कामरान साहब हैं शायद कराची में, वो भी इसके ऊपर जो है वो करते रहते हैं, वो शायद US में मूव हो गए हैं।
तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। फिर मैं पिफा मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एक बड़ा नॉवल किस्म का टॉपिक जो है वो चूज़ किया और बहुत रेलिवेंट है हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, हम वो प्रैक्टिस में हो, हम वो बिजनेस में हो। तो ये मैं मतलब उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ कि उनको भी उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो वो ये है कि आप जाहिर बात है कि आप काम कर रही हैं, एज अ प्रैक्टिशनर काम कर रही हैं, और आपकी क्लाइंट्स हैं, और तो आपकी स्टडीज़ ये सारी चीज़ें भी यानी हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ शेयर कर सकती है। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम एक और जो है वो एनएलपी के रिलेटेड कोई इंट्रोडक्टरी ज़रूर वेबिनार करेंगे। मैं पिफा की फैसलाबाद की ब्रांच कमेटी का शुक्रगुजार हूँ, पिफा मैनेजमेंट का, नईम अख्तर साहब का, अली उस्चा का, आईटी टीम का, सबका शुक्रगुजार हूँ। और वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज शिरकत की और ज़रूर उन्होंने इससे बेनिफिट किया होगा, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो इस पे हम जो है वो इसको क्लोज करते हैं। मैं अली उस्चा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे लाइन पे लिया, कुछ जो है वो क्लोजिंग रिमार्क्स कहने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अली उस्चा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स।